Welcome in chemistry session. Here we are discussing the parts of the properties of amines. If we are having this is the primary amine, secondary amine, tertiary amine, and then this is the quaternary ammonium salts. Here the primary amine, first of all we are talking this is the what is the color of amine in general. Primary amines, the color, it is what primary, secondary, tertiary and quaternary amines. The primary amine shows this is the green color. In general it is a green color. Secondary amines it is what yellow in this is yellow colors, and this is the tertiary amine. In general it shows a red color, and this is what a purple color. So this is what a color properties. This primary amine in general green color, secondary yellow color, red tertiary amines are red in color, and cotton is a purple in color. So here we are discussing the next part of this is the properties. Base most important, pKb value, Kb value and pKb value. If we are having this is the pKb value, as we talking this is about the basic nature. Base, as we can say, this is the basic nature of this is the amines. Here this is the we know that the more pKb value, here more the pKb value जिसका ज़्यादा होगा, more the pKb values base is weaker. वो base क्या होगा, weak होता है. For example, we are having the types of amine. This is the ethyl amines. Again, one of the another types of amine. This is what a pyridine. So the next amine, this is what a CH3 C triple bond N. This is one of the nitrogen containing compounds. Here, what is the pKb value? You have to given the pKb value. The ethyl amines, if this is the pKb value is 3.3. Again, what pyridine having the pKb value 8.7, and this acetonitrile having the pKb value is 24. So we know that this is what hybridized nitrogen atoms which are having the sp3 hybridized atom, and this what nitrogen atoms having what sp hybridized atom, and this is what sp2 hybridized atom. And we know that this is the acidic in nature. अब हम acidic की बात करेंगे तो sp hybridized कार्बन एटम मोस्ट एसिडिक होता है sp2 और sp3 से. This is the acidity, and we know that this is what a less acidic. ये लेस एसिडिक होता है, मतलब मोर बेसिक होता है. जो लेस एसिडिक होगा वो मोर बेसिक होगा. So this is how this is the sp2 hybridized atom. This atom is sp hybridized atom. So it is too difficult to protonate. ये प्रोटोनेट करने में ज्यादा डिफिकल्ट होगा इससे, है ना. इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, ये प्रोटोनेशन करने में इजीली प्रोटोनेशन करेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पे भी प्रोटॉन नहीं है. इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. अगेन सेकंड थिंग हम देखेंगे pKb वैल्यू. इसका सबसे pKb वैल्यू कम है, इसका pKb वैल्यू ज्यादा है. जिसका pKb वैल्यू ज्यादा है, जिसका वैल्यू pKb ज्यादा होता है, वो बेस क्या होता है, वीक होता है. तो इसमें हम कह सकते हैं CH3Cr, it is a less basic. It is what we can say more acidic and less basic. More acidic and less basic. यहाँ पे बेसिक की हम ऑर्डर देखते हैं तो ये क्या है, less basic है compared to pyridine, and what last is what CH3 CH2 NH2. So that is the what order of basicity. ये ऑर्डर हो गया बेसिसिटी का. इसमें ये ज्यादा बेसिक होगा, ये कम होगा, सबसे बेसिक कम ये होगा. दिस इज व्हाट मोर बेसिक, मोर एसिडिक, मतलब लेस बेसिक. तो ये हुआ लेस बेसिक. So this is what on the basis of pKb value we can determine or we can decide the which acid is stronger. Which base is a stronger base and which base is a weaker base. तो याद रखना है, जिसका pKb वैल्यू ज्यादा है, वो लेस बेसिक होता है. वो क्या
क्या होता है, लेस बेसिक होता है। सपोज हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं CH3NH2 है हमारे पास, उसके बाद डाइमेथिलामाइन है, दिस इज CH3, this one is CH3NH, another types we can is ethylamine here, यहाँ पे हम लेते हैं that is aniline, this is one of the types of the example that are aniline. So another types of example benzylamine, so that is what CH2NH2 is here, benzylamine. So what happen here, we are giving this is the pKb value, यहाँ पे कुछ example है, इसके pKb value according to pKb value, इसका pKb value होगा methylamine, so this pKb value is what 3.38, dimethylamine इसका pKb value होगा 3.27, ethylamine इसका pKb value होगा 4.22, so that is what aniline, aniline का pKb value है, so that is aniline, aniline का pKb value है 9.38 और benzylamine का है 4.28। अब देखना है कि pKb वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा किसका है। देखो ये जो एग्जांपल है इसका सबसे ज्यादा pKb वैल्यू है, सो दैट इज व्हाट मोर pKb वैल्यू, pKb वैल्यू इसका ज्यादा है तो वो क्या होगा, लेस बेसिक होगा। सो दिस इज व्हाट एरोमेटिक बेस, ये क्या है, एरोमेटिक बेस है। अब भैया एरोमेटिक और एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो ये देखो ये भी कौन सा बेस है, ये एलिफेटिक बेस है। कौन सा बेस है, एलिफेटिक बेस है, इसका pKb वैल्यू कम है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कंपैरिजन बिटवीन दिस एलिफेटिक एंड एरोमेटिक और साइक्लिक एंड दिस व्हाट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो बेस होता है वो दिस इज व्हाट sp2 hybridized carbon atom, this types of the carbon sp2 hybridized carbon atom, this aromatic base is what less basic, this is what less basic compared to what methylamine, ethylamine, dimethylamine as well as benzylamine. So we are a comparison between what again dimethylamine and methylamine। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, मेथिल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ा है ना, pKb वैल्यू क्या हुआ, whenever we can see here the pKb value इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होता है, pKb वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो दोनों के कंपैरिजन करेंगे, इसका pKb वैल्यू कम है, इसका pKb वैल्यू कम है तो वो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पे ये बेस क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस है, किससे, मेथिलामाइन से, CH3 dimethylamine is stronger base, dimethylamine the stronger base than methylamine से CH3NH2, मेथिलामाइन से डाइमेथिलामाइन स्ट्रॉन्गर बेस है। तो यहाँ पे याद रखना है। और दूसरी कंसेप्ट हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इंक्रीज होगा, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, तो वहां पे बेसिसिटी स्ट्रांग होती है, बेसिसिटी इंक्रीज होती है। बेसिसिटी क्या होती है, स्ट्रांग होती है, बेसिसिटी इंक्रीज होती है। अब देखो यहाँ पे हम दो एग्जांपल की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एनिलीन है, एक एग्जांपल एनिलीन लेते हैं और दूसरा एग्जांपल वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सर्किट लेते हैं। बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सर्किट कहाँ पे होना चाहिए, देखो एनिलीन है, एनिलीन का pKb वैल्यू हमने कितना लिखा था, 9.38। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो ये नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके यहाँ पे मुझे CH3 ग्रुप लगाना है। यहाँ पे CH3 ग्रुप कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा, इसका pKb वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। pKb वैल्यू डिक्रीज हुआ, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन ये एनिलीन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, इसका pKb वैल्यू कितना है, इसका 9.38 है ना। जब मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे मेथिल ग्रुप जनरेट होता है, तो pKb वैल्यू इसका कम हो रहा है, मतलब बेसिक इसमें से ये ज्यादा बेसिक है। कौन सा, सो दैट इज व्हाट यू कैन कंसीडर A एंड दिस वन इज B। तो यहाँ पे B ज्यादा बेसिक हुआ A से, तो इसका बेसिसिटी ज्यादा है, ये मोर बेसिक है
एनिलीन से। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होता है। नाइट्रोजन को हम सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज इंक्रीजेस टू नाइट्रोजन एटम, then whatever the pKb value is decreases, pKb value इसका डिक्रीज होगा, but whatever there is one increases the electron density। अब इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे हम इंक्रीज करें। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इंक्रीज होता है तब उसका बेसिसिटी pKb वैल्यू डिक्रीज होगा लेकिन बेसिसिटी इंक्रीज होगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट asked on the basis of this order values of the pKa, pKb value and pKa value। यहाँ पे हम pKb वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो डिपेंड अपॉन व्हाट, pKb वैल्यू और एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।